آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف وارنٹ جاری، جنگی جرائم میں ملوث ہونے پر عالمی عدالت کا اقدام۔ اسرائیل کو تل ابیب پر حملے کے لیے تیار رہنا چاہیے، حزب اللہ کا انتباہ۔ اڈانی گروپ کے صدر نشین کے خلاف امریکہ میں مقدمات درج، حکومت ہند سے گرفتاری کا کانگریس نے کیا مطالبہ۔ تلنگانہ میں گھر گھر سروے جاری، 55% کام مکمل۔ تلنگانہ میں آئندہ ہفتے درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس تک درج کیا جائے گا، حیدرآباد میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ۔ اور نوجوان کے قتل کی سنسنی خیز واردات، حیدرآباد کے پرانے شہر میں 18 سالہ نوجوان کو چاقو گھونپ کر مار دیا گیا۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ عالمی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم پر جنگی جرائم کے ارتکاب کا الزام ہے۔ عالمی فوجداری عدالت نے جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزام میں سابق اسرائیلی وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے ہیں۔ عدالت نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ الاقسام بریگیڈز کے سربراہ محمد ضعیف کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ عالمی فوجداری عدالت کے چیف پراسیکیوٹر نے رواں سال مئی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور دیگر کے جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزام میں وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے لیے درخواست دی تھی۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ بیروت پر حملوں کے بعد اسرائیل کو تل ابیب پر حملے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بیروت سے عرب میڈیا کے مطابق نعیم قاسم نے اپنے خطاب میں کہا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت سے پہلے حزب اللہ نے امریکی صدر اور فرانسیسی صدر کے جنگ بندی منصوبے کو قبول کر لیا تھا۔ نعیم قاسم کا کہنا تھا کہ لبنان پر اسرائیلی جارحیت کو 1.5 ماہ گزر چکا ہے، حزب اللہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جنوبی لبنان کے گاؤں اور قصبوں میں داخل ہو کر فتح کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حزب اللہ جنگ بندی کے ساتھ ساتھ لبنان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ ہندوستانی ارب پتی اڈانی گروپ کے چیئرمین گوتم اڈانی کے خلاف امریکہ میں مالیاتی دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ نیویارک کے فیڈرل پراسیکیوٹر نے الزام لگایا کہ اڈانی گروپ نے ہندوستانی حکام کو رشوت دینے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کو غلط معلومات فراہم کی اور ان سے فنڈز حاصل کیے۔ ان الزامات کی بنیاد پر گوتم اڈانی، ان کے رشتہ دار ساگر اڈانی اور مزید 7 افراد کے خلاف مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ پراسیکیوٹرز نے دعویٰ کیا کہ اڈانی اور ان کی کمپنیوں نے 20 سال میں $2 بلین کے منافع بخش شمسی توانائی کے معاہدے حاصل کرنے کے لیے ہندوستانی سرکاری حکام کو تقریباً $265 ملین کی رشوت دی۔ امریکی عدالت میں رشوت کے الزامات کے تحت مقدمہ درج ہونے کے بعد کانگریس کے سینئر لیڈر اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے اڈانی گروپ کے چیئرمین گوتم اڈانی کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا کے چیئرپرسن مادھوی پوری بیچ پر بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ کانگریس کے مرکزی دفتر میں جنرل سیکریٹری جے رام رمیش کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر بھی شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی گزشتہ کئی سال سے اڈانی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے مطالبہ کیا کہ حالیہ الزامات کی جانچ کے لیے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے اور کہا کہ کانگریس اس معاملے کو پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں اٹھائے گی۔ نریندر مودی جی نے ایک نعرہ دیا، ایک ہیں تو سیف ہیں۔ انڈیا میں اڈانی جی اور مودی ایک ہیں تو سیف ہیں۔ ہندوستان میں اڈانی جی کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ چیف منسٹر 10-15 کروڑ کے لیے اندر چلے جاتے ہیں اور اڈانی جی 2000 کروڑ روپے کا سکیم کرتے ہیں اور وہ باہر گھوم رہے ہیں۔ کارن ہے کہ پردھان منتری ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ میں انڈائٹمنٹ ہوا ہے اڈانی جی کو، 2000 کروڑ روپے کا سکیم ہے۔
हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है, ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने जुमेरात को दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त जारी कर दी है। पहली फेहरिस्त में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर आने वाले नामों को तरजीह दी है, जबकि इसने 11 में से 6 सीटों पर दीगर पार्टियों से आए उम्मीदवारों का ऐलान किया। अनिल झा, बीबी त्यागी और बरहम सिंह तनवर कुछ दिन पहले बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। आइंदा साल के आज़मीन हज के लिए इत्तला है कि हज 2025 पर रवानगी के लिए 65 साल से ज्यादा उम्र के आज़मीन के लिए कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी है। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कोरोना सर्टिफिकेट न होने की सूरत में सफर हज रवानगी मुमकिन नहीं होगी। इस हवाले से दरख्वास्त गुजार को मुतालिका बैंक से 10 फरवरी 2025 से कबल सऊदी अरब की मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट जमा कराने की यकीन दहानी पर दरख्वास्त जमा करवाने की मशरूत इजाजत दी गई है। टॉलीवुड अदाकार रामचरण की आंध्र प्रदेश की मशहूर अमीन पीर दरगाह पर अय्यप्पा लिबास में हाजिरी और चादरगुल पेश करने पर अय्यप्पा भक्तों ने एतराज किया। उन्होंने अदाकार पर मजहबी रसूमात का एहतराम न करने पर तनकीद की। अदाकार दरगाह शरीफ में 80वें कौमी मुशायरे के मेहमान खुसूसी के तौर पर दरगाह पहुंचे थे। अय्यप्पा भक्तों ने इस वाक़े पर मायूसी का इजहार करते हुए अदाकार से मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर दीक्षा से दस्तबरदार हो जाएं और तमाम अय्यप्पा के अकीदतमंदों और पूरी हिंदू बिरादरी से माफी मांगे। స్వామి శరణం స్వామి గత కొన్ని రోజుల క్రితము పవిత్రమైన అయ్యప్ప మాల ధరించినటువంటి సినీ హీరో రామ్ చరణ్ తేజ గారు నిన్న కడపలోని అమీన్పుర దర్గాలో పవిత్రమైన అయ్యప్ప మాలలో సందర్శించడాన్ని యావత్ హిందూ సమాజము యావత్తు అయ్యప్ప భక్తులం దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. స్వామి రామ్ చరణ్ గారు మీరు ఎవరి కోసమన్నా ఎక్కడికన్నా ఏ దర్గాలకన్నా వెళ్ళండి, మేము దానికి వ్యతిరేకం కాదు. దయచేసి పవిత్రమైన అయ్యప్ప మాల ధరించి ఈ రకమైన హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీయటం ఇది క్షమించడానికి నేరము. ఈ యొక్క రామ్ చరణ్ తేజ గారికి మేము ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. స్వామి మీరు వెంటనే మీ యొక్క మాలను తీసివేసి ఆ యొక్క అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించి నాకు తప్పైంది క్షమించమని కోరుకోవాలి. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से घर घर सर्वे का काम जारी है। समाजी, माशी, तालीमी, रोजगार और सियासी जात पात के फवायद अवाम को पहुंचाने के मकसद से कांग्रेस की रेवंत रेड्डी हुकूमत ये सर्वे करवा रही है, जिसका 56% काम मुकम्मल हो गया है। इस जामे घर घर सर्वे में जुमला 90,56,383 मकानात का अहाता किया गया। जिले मुल्क सरे फेरिस रहा। The caste survey, which has been long awaiting issue in this country, and as you all aware that Rahul Gandhi ji has announced even during the time of the general elections of the Telangana state that once we come to power in this state, we will definitely start the caste survey right from the Telangana state itself. So as is promised, we after बीआरएस लीडर ओएमएलसी कविता ने अडानी मामले पर एक अहम ट्वीट करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर संगीन इल्जामात आयद किए। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार कविता ने सियासी तबसरा करते हुए कहा कि कितनी बार भी इल्जामात आए, क्या वज़ीर-ए-आज़म हमेशा अडानी के ही साथ रहेंगे? कविता ने सवाल किया कि अडानी के लिए एक इंसाफ और दूसरी तरफ खवातीन के लिए अलग इंसाफ। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि सबूत के बगैर सिर्फ औरत होने की वजह से गिरफ्तार करना आसान है, लेकिन अडानी के खिलाफ शवाहिद मौजूद होने के बावजूद इन्हें गिरफ्तार करना मुश्किल क्यों है? कविता ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से सवाल किया कि कितनी बार भी इल्जामात सामने आए, क्या वो हमेशा अडानी का ही दिफा करेंगे? अडानी ग्रुप के सरबराह गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क फेडरल प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से दर्ज किए गए इल्जामात पर बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने एक दिलचस्प ट्वीट किया।
उन्होंने अडानी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ऐसे शख्स जो अमेरिका जैसे सुपर पावर को धोखा देने की कोशिश करता है, वो भारतीय हुकूमती अफसरान को रुश्वत देकर धोखाधड़ी में मुलव्विस हुआ। केटीआर ने कांग्रेस और बीजेपी के अडानी के साथ ताल्लुकात को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क के लिए शर्मनाक और बदकिस्मती की बात है। तेलंगाना असेंबली के सरमा इजलास की तारीख को कतियत दे दी गई है और इजलास 9 दिसंबर से शुरू होंगे। इस दौरान असेंबली में ROR कानून को मंजूरी दिए जाने का इम्कान है, जिस पर काफी अरसे से बहस जारी है। इजलास में किसानों के मसाइल और जात-पात की मर्दमशुमारी पर भी तफसीली बहस की तवक्को की जा रही है, जो रियासत के मुस्तकबिल के लिए अहम फैसले करने में मददगार साबित हो सकती है। महाराष्ट्र के इंतखाबात के नतायज के बाद तेलंगाना काबीना में तोसी की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 इम्तिहानात से मुताल्लिक़ उम्मीदवारों को एक अहम इत्तला दी है। कमीशन ने पहले ही इम्तिहानात की तारीख का ऐलान किया था और अब कहा है कि हाल टिकट 9 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार 9 दिसंबर से इम्तिहान के दिन तक हाल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप 2 इम्तिहानात 15 और 16 दिसंबर को सुबह और दोपहर 2 सेशंस में मुनक्किद होंगे। तेलंगाना हुकूमत ने जुमेरात 21 नवंबर को इंकशाफ किया कि रियासत में चिकनगुनिया के 447 तस्दीकशुदा केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। जारी असल अब तक कोई हलाकत नहीं हुई। ये तेलंगाना से वापस आने वाले अमरीकी मुसाफिरों में चिकनगुनिया के मामलात में इजाफे के बारे में यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एडवाइजरी के जवाब में आया है। सेहत-ए-आमा और खानदानी बहबूद के डायरेक्टर के दफ्तर तेलंगाना ने शहरियों को यकीन दिलाया है कि सूरत हाल काबू में है। जिले विकाराबाद के लगाचर्ला गांव का दौरा करने पर बाएं बाजू की जमातों के लीडर्स को पुलिस ने रोक दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। इस गांव में फार्मा कंपनी को अराजी की हवालगी के खिलाफ मुकामी अफराद ने कलेक्टर पर हमला किया था, जिसके बाद कई एहतजाजी किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस वाकये की तफसीलात मालूम करने के लिए बाएं बाजू के लीडरों का एक वफ्द इस गांव के दौरे के लिए गया हुआ था, ताहम पुलिस ने इन जमातों के लीडर्स को इसकी इजाजत नहीं दी। CPI ML परगी डिवीजन के सेक्रेटरी मल्लेश, एग्रीकल्चर वर्कर्स एसोसिएशन के जिला सदर वेंकटेश और दीगर समेत कई लीडर्स को हिरासत में ले लिया गया। जिले नारायणपेट के मगनूर ZP स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद बीमार तुलबा का महबूबनगर जिला हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि तुलबा की सेहत मुस्तहकम है, ताहम इन दोनों को डॉक्टर्स की खुसूसी निगरानी में रखा गया है। महबूबनगर के जिला कलेक्टर ने बीमार बच्चों की इयादत की। उन्होंने हुक्काम को बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस वाकये की तफसीलात हासिल की और मुतासिरीन को बेहतर इलाज फराहम करने का मशवरा दिया। హలో మీరు 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 ఏం చెప్పాలనుకొని వచ్చారు ఇప్పుడు? లేదు సార్, అంటే గొడవ మేము గొడవ చేయట్లేదండి, దాని గురించి అదే తెలుసుకోవడానికి వచ్చామండి. మేము ఎవరితో గొడవ ఎందుకు చేస్తాం? మా పిల్లల బెడ్ల మీద 15 మంది పిల్లలు బీద పిల్లలు ఏమీ లేక ఇక్కడికి వస్తే వీళ్ళకు హాస్పిటల్లో హెడ్ క్వార్టర్, ఇది ఉమ్మడి జిల్లా హెడ్ క్వార్టరు హాస్పిటల్లో మీ పిల్లలే ఉంటారు. ఏమన్నా జరుగుతుంది మన పిల్లలకి? గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఫుడ్ ఎంత క్వాలిటీ ఇస్తారు? అరే మీకు ఎవరన్నా ప్రెషర్ ఉంటే మీరు పట్టుకపోండి మమ్మల్ని కూడా, మాకు ఏమి ఇబ్బంది లేదు. మేము ఇక్కడే ప్రశాంతంగా ఉంటాం. మేము ఎవరికైనా ఏమన్నా బాబు ఏమన్నా అన్నామా? ఒక్క మాట అన్నామా? జస్ట్ వీకేమి మేము ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాము? మా పిల్లలు కాడ మా పిల్లలు ప్రతి బెడ్ లో కంప్లైంట్ చేశారండి, అందుకే వచ్చినాము. మీరు మళ్ళీ మీకు ఎవరు ఫోన్ చేస్తే వచ్చారు ఇక్కడికి? ఇచ్చిండ్రు ఇంకా అప్పుడే స్పాట్ లోనే తిన్నాం. తర్వాత దేనిలో వచ్చినాయి? వాళ్ళు వచ్చినాయి. ఒకటి ఇంటికి అలా ఉంది గాడు చెప్పింది నాకు. ఇంకా అందుకోసమే ఇంకా వాడు వాంతిగా అయినట్లు వేస్తుందంట, అందుకోసమే వాంతిగా ఇంతే. అప్పుడే వచ్చేసి ఇట్లా తింటుంటే ఇంకా సార్ వచ్చేసి ఇట్లా ప్లేట్ నాకు దెబ్బేసింది. ఇంతే జరిగింది. పడేసి వచ్చినా ఇంకా చేపల్లో ఇంకా మళ్ళా ఫుడ్ మళ్ళా రెడీ చేస్తున్నారు. పొద్దున్న మందికి వస్తారు. एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने हैदराबाद में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
एसीबी के अहदेदारों के मुताबिक महबूब बाशा, जो कि मलकपेट सर्किल 2 हैदराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने शिकायत कुनिंदे से बैंक अकाउंट को बहाल करने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी और सोमशेखर, असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, मलकपेट के जरिए 50,000 रुपए रिश्वत की रकम कबूल की गई। शिकायत कुनिंदे ने एसीबी हुक्काम को इत्तला दे दी और उन्होंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा है कि 8,047 पुलिस कांस्टेबल्स ने तेलंगाना भर में तरबियत हासिल की है, जिसमें 4,100 सिविल, 3,685 एआर, 2,028 कम्युनिकेशन और 18 पुलिस ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल्स शामिल हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसमें 1,128 अफराद को तरबियत के लिए हैदराबाद पुलिस डिपार्टमेंट को तफवीज किया गया था। अब 747 अफराद ने पासिंग आउट परेड की है। 3,081 खातून कांस्टेबल्स ने तरबियत हासिल की। सीवी आनंद ने बताया कि 1992 में इन्होंने आईपीएस की तरबियत हासिल की और पासिंग आउट परेड हुई। अगरचे बारिश हो रही थी, लेकिन हमने परेड मुकम्मल की। उन्होंने कहा कि तरबियत हासिल करने के बाद महकमे पुलिस में 35 साल उन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं। శిక్షణ ఇక్కడ పొంది అక్కడ పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్లో వాళ్ళు పాల్గొంటున్నారు. మీ అందరికీ కూడా మరోసారి నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు మీ పోలీస్ కెరియర్కి ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం అని నేను తెలియజేస్తున్నాను. మీరు ఒక ప్రమాణం చేశారు. ఇప్పుడే మీరేమన్నారు? రాజ్యాంగానికి విధేయునిగా ఉంటానని, నిజాయితీతో వ్యవహరిస్తానని. हैदराबाद के कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद से 2 तालिबात के लापता होने का वाकया पेश आया। 14 साल हरिका और 13 साल लक्ष्मी दुर्गा दोनों विवेकानंदा नगर के श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल की 8वीं जमात की तालिबात हैं। वालिदीन के मुताबिक दोनों सुबह 8:30 बजे स्कूल के लिए रवाना हुई, लेकिन शाम 5:30 बजे जब वालिदीन उन्हें स्कूल से लेने के लिए पहुंचे तो टीचर और प्रिंसिपल ने बताया कि वो स्कूल से जा चुकी हैं। पुलिस ने इस वाकये की इत्तला मिलने पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके संतोष नगर में कल रात एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि 18 साल मोहित खान साकिन संतोष नगर पर कल रात 6 नौजवानों ने अवेसी नगर के करीब दरगाह हजरत बरहने शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की कमान के पास खंजर से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावर 6 थे। उन्होंने नौजवान पर खंजर से 2 वार किए, जिसके नतीजे में नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। कत्ल की वजह पुरानी मुकासिमत समझी जा रही है। कत्ल के वाक़े की इत्तला मिलते ही जनाब जाफर हुसैन मेराज रुकन असम्बली मजलिस ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल पहुंचकर महलूक नौजवान के अरकान खानदान से तफसीलात हासिल की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इब्तिदाई इत्तलात में मालूम हुआ है कि नौजवान उर्स शरीफ में शिरकत के लिए आया हुआ था। कत्ल की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। रुकन असम्बली ने कहा कि नौजवान नस्ल में इस तरह के वाक़यात बाअस तशवीश हैं। उन्होंने इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस और डीसीपी साउथ जोन से बात करने का तयक़ुन दिया। संतोष नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में अवेसी कॉलोनी कमान, जो संतोष नगर बराने शाह साहब की दरगाह के करीब आता है, वहाँ पे एक घंटा भर पहले एक मर्डर हुआ। 18 साल का लड़का है जिसका नाम मुहीद है। वो बच्चा उर्स में आया हुआ था। पुलिस वेरीफाई कर रही क्या रीजन से मर्डर हुआ। वो लड़का कोई कहता है स्टूडेंट है, कोई कहता है कि कुछ फ्रूट का कारोबार करता था। बहरहाल एक हादसा ऐसा हुआ है जो नहीं होना था। तो जैसे ही इत्तला मिली, मुकामी कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब स्पॉट पे पहुंचे। मेरे को खुद पता चला तो मैं इमीडिएट यहाँ पे उस्मानिया हॉस्पिटल आया। लड़के का स्पॉट डेथ हो गई थी। अभी पुलिस वालों ने यहाँ पर लेकर आया पोस्टमार्टम के लिए। सुबह इंशाल्लाह डेड बॉडी मिलेंगे। हम हैदराबाद की पुलिस से ये कहना चाहते हैं कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं
इसके ऊपर कड़ी निगरानी की जरूरत है। खास तौर से क्यों हो रहा है, नौजवान नस्ल क्यों ये सब चीज़ों में मुब्तला है, इसके लिए बेइंतहा पुलिस को ज़रूरी है ये सब चीज़ देखने के लिए। इस ताल्लुक से मैं खुद भी कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी बात करूंगा, DCP से भी बात करूंगा, और हम चाहते हैं कि ये कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसकी तरफ से नौजवान नस्ल खराब हो। हमारा शुबा ये है कि शायद आजकल आहिस्ता आहिस्ता ड्रग्स आम हो रहा है, वो भी एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये नौजवान बच्चों का दूसरा क्या रह सकता है मामला, कोई और मामला नहीं रह सकता। बहरहाल हम खास तौर से इसकी इत्तला हमारे सदर नखीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी दिए हैं और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी दिए हैं। हम इस ताल्लुक से सीरियस नोट लेंगे और जो भी खाती है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, और पुलिस को भी ये करेंगे कि भाई आप गैर जानिबदारा तौर के ऊपर इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करना चाहिए, जितने लोग भी इसमें मुलविस है उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। सुबह के औकात में कई मकामात पर कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के हुक्काम का कहना है कि शदीद सर्दी मजीद 5 दिन तक जारी रहेगी। पटन चेरू में अकलतरीन दर्ज हरारत 12.2 डिग्री, राजेंद्र नगर में 13 डिग्री, हयातनगर में 14.6, बेगमपेट में 15.1, हकीमपेट में 15.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने बताया कि मशरिक और शुमाल मशरिक इलाकों से हवाएं तेलंगाना की तरफ चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि तेलंगाना भर में आइंदा हफ्ते दर्ज हरारत 15 डिग्री से कम रहेगा। इस सिलसिले में महकमा सेहत ने कई हिदायत जारी की हैं। महकमे के अहदेदारों ने कहा कि सर्दी के मौसम में इन्फ्लुएंजा के इम्कान है। सर्दी, बुखार, दर्द इन्फ्लुएंजा की अलामत है। ये एक आम बीमारी है और इसे ठीक होने में 1 हफ्ता लगता है। हामिला खवातीन, छोटे बच्चे, बूढ़े और सांस लेने में दुश्वारी महसूस करने वाले मरीज एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। महकमा सेहत ने कहा कि मुनासिब नींद, वाफिर मकदार में पानी और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक लेने से इंसान इन्फ्लुएंजा से मुतासिर होने से महफूज रह सकता है। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी, जंगी जराइम में मुलविस होने पर आलमी अदालत का इक़दाम। इजराइल को तिल अबीब पर हमले के लिए तैयार रहना चाहिए, हिजबुल्लाह का इंतबाह। अडानी ग्रुप के सदरनशीन के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दर्ज, हुकूमत हिंद से गिरफ्तारी का कांग्रेस ने किया मुतालबा। तेलंगाना में घर घर सर्वे जारी, 55% काम मुकम्मिल। तेलंगाना में आइंदा हफ्ते दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाएगा। हैदराबाद में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। और नौजवान के कत्ल की सनसनीखेज वारदात, हैदराबाद के पुराने शहर में 18 साल नौजवान को चाकू घोंपकर मार दिया गया। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।